आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स के पास ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो हम ले सकते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए। वी आर ह्यूमंस, कभी गलतियां हो जाती हैं। सो मेजर प्रॉब्लम रहता है कि डिजाइन डिफेक्ट। इफ दैट बिल्डिंग कोलैप्सेस और समथिंग बैड हैपेंस टू दैट बिल्डिंग, सो देन दैट द ओनर कैन सू दैट आर्किटेक्ट। इंडिया में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैनेज किया जाता है, क्या वहां पे वनरेबिलिटी है ज्यादा, या क्या और एडिशनल सिक्योरिटी या सेफ्टी साइड हमारे को अडॉप्ट करना चाहिए? स्मॉल जॉब्स जो लोग इंटीरियर्स की कर रहे होते हैं विद इन द बिल्डिंग, वहाँ पे तो फिर भी रिस्क जो रहता है वो कम होता है कंपेयर टू से सिविल वर्कर्स की सेफ्टी का तो ध्यान रखा ही नहीं जाता। For today's episode, I have invited Mr. Dheeraj Malik to this podcast. Now, Dheeraj deals in insurances and wealth management sector. Wealth management हमने इस podcast पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करी. And for our viewers who are majorly architects, interior designers, contractors, or people who are involved in the construction industry, you must be thinking insurances related person एक design podcast पर क्या requirement है? Actually हम लोग क्योंकि इतने creative field में involved रहते हैं that we don't understand the risks associated with the work we do. And इस podcast का main purpose ये है so that we understand what risks are involved at the construction site, which somewhere we are aware about, but how to actually safeguard ourselves from the financial complications associated with those risks is what we are going to learn from Mr. Dheeraj. So if you're interested, do watch the show. Dheeraj, welcome to Designer Living Podcast. And I hope आज का podcast interesting हो हमारे viewers के लिए, especially जो architects हैं, designers हैं, contractors हैं, because हम लोग अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं दैट समटाइम्स उसके पीछे जो एसोसिएटेड रिस्क होते हैं उसको हम एनविसेज नहीं कर पाते। एंड आज का पॉडकास्ट मेजरली इन्हीं रिस्क को अवॉइड किया जाए या डील करा जाए के लिए पीछे रिस्क मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस अगर हम बात करें, वो आपसे हमें उस पर डिटेल नॉलेज चाहिए। तो बट बिफोर वी स्टार्ट, I would want that for our audience you just introduce yourself. आप कब से इस फील्ड में हैं and किस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं? Okay, so I am Dheeraj Malik. So I am the business head at Malik Associates. So this firm is in this industry since 1978. So I am the second generation. So my father started in 1978, and I am coming from a science background. Then I moved and joined him in 2005. So since he was in life insurance industry, so I moved into the general insurance category. So all the insurances which you said would be needed for architects, contractors are there in the general insurance category only. Okay. So I'm heading my firm, Malik Associates. So what my major role now is in the company is to review the portfolios of the individuals. You know, whether that portfolio is of insurance, as you said, कि architects को क्या चीजें होनी चाहिए उनके पास, and similarly on the wealth creation part as well. So review करना portfolio को, जिसे wealth management बोलते हैं, right? Correct. ठीक है, but आज के podcast के लिए our main concern is that we are aware about the risk management, certain insurance policies which are there for us to buy, for us as in architects, interior designers and contractors, which brings me to my first question to you. Okay. आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स के पास ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो हम ले सकते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए? करेक्ट। सो आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स के पास सबसे जो बड़ा एक रिस्क रहता है, यू नो, ऑल्दो दे हैव द एक्सपीरियंस, दे हैव द नॉलेज, बट स्टिल वी आर ह्यूमंस, कभी गलतियां हो जाती हैं। सो जो एक मेजर प्रॉब्लम रहता है वो रहता है कि डिजाइन डिफेक्ट में। सो उस डिजाइन डिफेक्ट में इफ दैट बिल्डिंग in the coming years collapses or something bad happens to that building, so then that the owner can sue that architect, right? You know, that because of the default in your designing or the weight management, my building collapsed. So wahan pe professionals like architects and designers can take that professional indemnity policy. So यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा
जब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोई बड़े स्केल के प्रोजेक्ट का एग्जांपल नहीं लेते, छोटे स्केल के प्रोजेक्ट का लेते हैं, हम कोई रेजिडेंशियल विला बना रहे हैं, किसी का घर बना रहे हैं. In such kind of a project, lot of stakeholders are involved. An architect is involved, a contractor is involved, and the owner is involved. And I'm here as of now not talking about the subcontractors. Majorly ये 3-4 लोग involved रहते हैं. Very true. Now, as you said that कोई structural issue आ जाए, building collapse कर जाए, collapse करना तो बहुत ही ज़्यादा एक major issue हो गया. Even if कोई minor structural damage आ जाए, then also the client, which he or she is right, can sue the other stakeholders involved in the project, which is the architects and contractors. तो स्ट्रक्चरल, वैसे भी जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को, स्पेशलिस्ट को फर्दर आउटसोर्स करते हैं एंड वो प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट वो लायबिलिटी भी एक आर्किटेक्ट के ऊपर आ सकती है. अगर एक स्ट्रक्चरल इशू भी हो जाए तो वो लायबिलिटी भी एक आर्किटेक्ट के ऊपर आ सकती है, वो तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऊपर आनी चाहिए ना. सो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है. If you as an architect are the only face in front of your client, you know, and then you are hiring your structural engineer or any specialization, then you are the responsible. You will be sued in case of any mishap. Okay, that means if I am further hiring other consultants, I am taking on board other consultants under me, then unki liability bhi legally I am liable if they do something wrong. Correct. Exactly. Okay, this is something new for me because I thought that probably structural consultants अगर outsourced हैं तो they are liable and I as in architects are going to be out of it. But I feel obviously एक project के अंदर बाकी consultants भी involved हैं, हम भी involved हैं, तो somewhere हम भी उसके अंदर involve हो जाएंगे. So इसके लिए क्या ऐसा product बना हुआ है that we can safeguard ourselves? So as I said, professional indemnity. And then the second कि structural engineers, let's suppose you have hired them, right? So उनकी भी ये policy आप as a record में रख सकते हैं, so that if due to any, which is mostly the cases, कि structural की वजह से ही कुछ damages आए, so if that damage happened and client sues you, then that compensation you can recover from the insurance company itself. Professional so हमारे ऊपर नहीं आया. प्रोफेशनल इंडेमनिटी को हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? प्रोफेशनल इंडेमनिटी का मतलब है कि कोई भी लायबिलिटी आपके काम करने के तरीके से अगर उस कंस्ट्रक्शन साइट पे या उस साइट पे आया और वो क्लाइंट जो है वो आपके ऊपर एक लीगल केस फाइल कर देता है, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, और उसमें आप अपनी लीगल फीस भी इंक्लूड कर सकते हैं. अच्छा, okay. So that is also a point. So from professional point of view तो यही हो गया. अगर हम contractors के point of view से बात करें जो वहाँ पर अपनी workforce लगाते हैं, so what kind of insurance should they be covered for? Very good question. So जैसे आपने अभी कहा ही था कि contractors हैं, सब contractors हैं. So contractors के लिए majorly 2 तरीके की policies रहती हैं. एक रहती है CAR. So CAR is not exactly car. So that is contractor all risk policy. So contractor all risk policy में right from your ₹1 का stock asset जो आपके building site में आया to the complete structure, वो सारा आपका covered है and it's an under construction site only. It's for under construction site only. ठीक है. तो ये तो हो गया कि मेरे बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है और जो मेरा मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टील है, सीमेंट है, वो सारा कवर्ड रहेगा अंडर फायर, अंडर बर्गलरी. अच्छा, ओके. एंड एड ऑन्स भी वहाँ पे हम ले सकते हैं. एंड अगर हम मैन पावर की बात करें, मैन पावर की बात करते हैं तो मैन पावर के लिए वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी रहता है. सो इट्स अ अननेम्ड पॉलिसी. उसमें आपको नाम नहीं देने अपने लेबर्स के, क्योंकि हम दे भी नहीं सकते हैं. लेबर आज आएगा कल नहीं आएगा. सो वहां पे 3 कैटेगरीज के बेसिस पे कि स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है या सेमी स्किल्ड लेबर है, उनके बेसिस में कितने महीने का प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका लाइफ रिस्क, उनके लॉस ऑफ लिम्स को ये पॉलिसी कंपनसेट करती है. ओके, एक बार पॉलिसी दोबारा रिपीट कर देंगे, कौन सी होती है ये पॉलिसी का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी. वर्कमैन कॉम्पनसेशन. सो अगर कोई अनफोर्सीन एक्सीडेंट हो जाए साइट पे,
किसी वर्कर की डेथ हो जाए किसी वजह से, सो द कॉन्ट्रैक्टर इज कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। करेक्ट। ओके, दैट्स आई थिंक हर कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ लेनी चाहिए। बट ये हो गए सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। अगर हम बात करें जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि इफ़ आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर एंड आई हायर अ इंजीनियर, अब ये स्किल्ड कैटेगरी में आ गए, ना ये सेमी स्किल्ड है ना ये अनस्किल्ड है। तो अब इंजीनियर टू सुपरवाइज द डेली वर्क एट साइट, तो क्या उनको अपनी अलग पॉलिसी लेनी है कि मैं उसी पॉलिसी में मेरे इंजीनियर भी कवर्ड हैं? इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द नेम्ड पर्सन, क्योंकि अब जैसे आपने इंजीनियर कहा तो इंजीनियर मेरे अपने पेरोल पर है। सो हमने वो अगर मेरे पेरोल पर है और हम उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर देना चाहते हैं तो उनके लिए हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हैं। अच्छा, उसमें भी सेम डेथ रिस्क कवर होगा और लॉस ऑफ लिम्स कवर होंगे। ओके, उसमें कवर वो दोनों चीजें हो जाएंगी। सो वर्कमैन कंपनसेशन इज फॉर अननेम्ड लेबर्स, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इज फॉर द नेम्ड, जो मेरे पेरोल पर है, जो मेरे कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। ओके, सो दैट मीन्स एक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 4 टाइप की पॉलिसीज मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। प्रोफेशनल इंडेमनिटी, वर्कर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, एंड जो आपने कॉन्ट्रैक्टर की अभी बताई पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो इंजीनियर के लिए बताई या नेम्ड पर्सन के लिए बताई, और अननेम्ड पर्सन के लिए आपने कौन सी बताई? वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन। तो दैट मीन्स अगर हम इन 4 पॉलिसीज को कंसिडर करें एक प्रोजेक्ट के अंदर तो हम बहुत रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। राइट। ओके चिराग, एक मुझे आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैनेज किया जाता है तो क्या वहाँ पे वनरेबिलिटी है ज़्यादा, या क्या और एडिशनल सिक्योरिटी या सेफ्टी साइड हमारे को अडॉप्ट करना चाहिए जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है दैट जो पॉलिसीज आप बता रहे हैं वो इंडिया में ऑल टुगेदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे वर्कर्स की सेफ्टी का तो ध्यान रखा ही नहीं जाता। एंड छोटी जॉब्स जो होती हैं, स्मॉल जॉब्स जो लोग इंटीरियर्स की कर रहे होते हैं विद इन द बिल्डिंग, वहाँ पे तो फिर भी रिस्क जो रहता है वो कम होता है कंपेयर टू से अगर हम सिविल वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे पीपल डोंट वेयर प्रॉपर हार्नेस, कोई सेफ्टी हेलमेट्स, या फॉर दैट मैटर अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो समटाइम्स एक्सकवेशन वर्क हो रहा होता है। एक्सकवेशन वर्क में आसपास साइड में देयर आर 2 बिल्डिंग्स, यू आर एक्सकवेटिंग इन द सेंटर एंड रेकलेसली लोग वर्क कर रहे होते हैं। एक्सकवेशन का कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगाए होते हैं एंड फाउंडेशन ही किसी की स्लिप कर जाती है, साइड वाले घर की फाउंडेशन स्लिप कर गए। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर एक्सकवेटिंग, डूइंग एक्सकवेशन वर्क एट साइट। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। सिमिलरली जब आप एक हाइट पे वर्क कर रहे होते हैं सो यू शुड हैव अ प्रॉपर स्कैफोल्डिंग इन प्लेस, you need to have a proper structure in place wherein when your construction workers are using that or doing work on that particular facade perhaps, so a proper scaffolding is there, so maybe a hydraulic lift is there. ये सारे जो expenses होते हैं ये एक site expense का part होते हैं, but सारे expenses करे जाते हैं पर ये वाले expenses को avoid कर दिया जाता है। So having said that, इनको अवॉइड पहली बात तो नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज इनको अवॉइड किया जाता है एंड रेकलेसली थोड़ा वर्क किया जाता है, कॉशन के साथ वर्क नहीं किया जाता, ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू नहीं किया जाता, उनकी लाइफ को वैल्यू नहीं किया जाता। इवन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट Tier 2 Tier 3 सिटीज़ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा वहाँ पर कैसे वर्क होता है। इवन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो एटलीस्ट अपने आप को फिर सेफ गार्ड करने के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसीज तो मेरे हिसाब से ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, और आई वुड से USA और यूरोप, जहाँ पर सर्टन स्टैंडर्ड्स आर देयर एंड ऐसे इतना रेकलेसली वर्क आई डोंट थिंक होता है। करेक्ट। सो इसी लाइन के साथ मैं अपना एक टैगलाइन भी जोड़ूंगा जो हम अपने कंपनी के साथ जोड़ते हैं कि इंश्योरेंस जरूरी है। हाँ, एब्सोल्युटली, इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। ओके, विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्या ये पॉलिसीज को टेलर मेड किया जा सकता है, कुछ अपनी कंपनी के हिसाब से उसको कस्टमाइज किया जा सकता है बिकॉज कंपनी साइजेस वेरी।
सम कंपनीज डूइंग अ प्रोजेक्ट वैल्यू जिसकी ए है, किसी कंपनी की प्रोजेक्ट वैल्यू बी है, तो क्या प्रोजेक्ट वैल्यू के बेसिस पे या कंपनी साइज के बेसिस पे क्या पॉलिसीज टेलर या कस्टमाइज होती हैं? हाँ, तो प्रोजेक्ट के साइज के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्टर की अवेयरनेस है कि क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होना चाहिए। सो इसे हम कहते हैं एड ऑन कवर्स। सो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क में फायर आपका कवर्ड है, बर्गलरी आपका कवर्ड है, ये दोनों इनबिल्ड फीचर्स हैं, उसी के अंदर ही हैं। अब अलग से आप ले सकते हैं, जैसे वेरी अ बिग कॉमन एग्जांपल इज द अर्थक्वेक राइडर। सो अर्थक्वेक एक एडिशनल राइडर है जो आप एडिशनल प्रीमियम पे करके उसको कवर कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली जरूर कराना चाहिए। इसी तरीके से ही एक राइडर है STFI, सो दैट इज स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड्स एंड इनंडेशन। सो ये चीज भी बहुत पावरफुल हो जाती है। सो वेरी आई थिंक पहले 3 सब स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड्स वेरी क्लियर होगा। इनंडेशन का एक बहुत देसी तरीके का मैं आंसर देना चाहूंगा आपसे कि सिवर है नीचे और सिवर पानी भरा, क्लॉग्स हुआ और सिवर बैक हो गया, तो उसका सारा पानी वहां आ गया जहां मैंने अपना सीमेंट रखा हुआ था, तो मेरा सीमेंट तो सारा खत्म हो गया। सो अगर मैंने उस STFI राइडर को ले रखा है अपनी पॉलिसी में एडिशनल प्रीमियम दे के, तो उसकी वजह से जो मेरे सीमेंट को डैमेज हुआ, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। ओके, सो ऐसी तरीके से एक तो ये तीसरा एड ऑन rider भी- किस पॉलिसी में एड ऑन है ये वाला पार्ट? ये कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी में राइडर है। अच्छा, ओके। एंड इन पॉलिसीज का यूज जब हम करते हैं, जब हम इनका बेनिफिट लेते हैं, हाउ डिफिकल्ट इज इट इन इंडिया इन सबको एक्चुअली, मतलब इनके बेनिफिट्स को यूज करना? करेक्ट। सो मिलता भी है ये सारी, हम 5-6 पॉलिसीज एड ऑन्स ले लें, 4 पॉलिसीज ले लें, चलो प्रोफेशनल इंडेमनिटी अलग रखें, कॉन्ट्रैक्टर ये 3 टाइप की पॉलिसीज लें, इतना एड ऑन एक्सपेंस करें अपना, अल्टीमेटली जब उसको नीड होती है, सो हाउ डिफिकल्ट और हाउ स्मूथ आई शुड से इज द प्रोसेस, ये आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो देखिए, इसका सबसे पहला आंसर तो मैं ये देना चाहूंगा कि जो भी आपकी बुक्स में होगा उसी के बेसिस पे ही क्लेम मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा चीज है जो हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा बुक्स को एक्सप्लेन करें। हाँ, जहां तक बात आई कि क्लेम का प्रोसेस क्या रहता है, सो क्लेम में ऑब्वियसली क्योंकि फायर क्लेम है या बर्गलरी क्लेम है, तो थोड़े से अलग अलग डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा रहता है। क्यों? क्योंकि एज अ इंश्योरेंस कंपनी जो सर्वेयर अपॉइंट करेगी टू सर्वे द क्लेम अमाउंट, जितने भी आपने क्लेम किया है इंश्योरेंस कंपनी पे, तो वो डॉक्यूमेंटेशन से पता चल पाएगा कि कितना माल उस समय उस साइट पर था। तो आपके जो परचेज इनवॉइसेस हैं वो हमें चाहिए होंगे, उसकी GST रिटर्न्स फाइल हुई कि नहीं, उससे हम टैली करेंगे कि परचेज इनवॉइस आपने दिखा तो दिया, बट वो क्या उतना अमाउंट वहां पे था भी कि नहीं था। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स में जो फाइलिंग करेंगे वहां से हमें क्लैरिटीज पता चलेंगी। तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा लंबा जरूर होता है, क्योंकि हमें एक इस्टेब्लिश करनी है एक फिगर पे कि कितना अमाउंट का जो हमारा रॉ मटेरियल था वो वहां पे पड़ा है। तो आई वुड नॉट से कि क्लेम प्रोसेस इज वेरी क्विक। क्लेम प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन कि कितना जल्दी आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके दे पाते हैं। सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट एज आई सेड डिपेंड्स अपॉन कि आप डॉक्यूमेंटेशन कितने दे पाते हैं। क्योंकि इंडिया में जैसे अब आपने स्पेसिफिकली बोला, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहता है। हर कोई कहता है कि इजीली काम हो जाए, हो रहा है, होने दो, चलते रहने दो। बट जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस को तो डॉक्यूमेंट ही चाहिए। आई थिंक एक और इशू ये भी कि अनअकाउंटेड मनी जो यूज होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो वो काफी मेजॉरिटी में यूज होता है। करेक्ट। सो दैट इज व्हाई वो तो भारी हो गया अमाउंट। सो वो बिल्कुल एकदम से बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास जो इनवॉइसेस हैं उसी के बेसिस पे हम अपनी क्लेम कर सकते हैं चीज़। बिल्कुल सही। कोई एग्जांपल आपने अपनी जो कंपनी रन कर रहे हैं उसके अंदर किसी प्रोफेशनल के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपने ऐसा क्लेम करवाया हो, कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे? करेक्ट। तो हमारे पास एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी था। उनका हिली एरियाज में, लद्दाख के पास, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हिली एरियाज में। तो जो उनकी फेंसिंग वॉल रहता है, रिटेनिंग वॉल जो रहता है वहाँ पे, वो उनका कोलैप्स कर गया क्योंकि लैंडस्लाइड वहाँ पे बहुत हो रहा था। अब वो डैमेज इतना एक्सटेंसिव था कि दैट अमाउंटेड टू 2 CR।
अब आप खुद थोड़ा सा अगर इसको ऑब्जर्व करें कि अगर 2 करोड़ का हम क्लेम कंपनी पे डाल रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन तो हमें चाहिए। सो इन अ नटशेल, सर्वेयर अपॉइंट हुआ, सर्वेयर ने विजिट किया उस साइट पे, वहाँ के जो मैनेजर था वहाँ से बातचीत करा, उनसे इन्वॉइसेस मांगे, उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस था वहाँ से कोऑर्डिनेशन करना पड़ा, उन दोनों के डॉक्यूमेंटेशन आके उसको कोलैबोरेट करना पड़ा इकट्ठा, क्योंकि उसको एक फाइनल रिपोर्ट, एक सिंगल रिपोर्ट बनानी है। तो ये किसको एक सिंगल रिपोर्ट बनानी है? सर्वेयर को। अच्छा, सर्वेयर को एक रिपोर्ट बनानी है इंश्योरेंस कंपनी को जो सबमिट करनी है। उसी के बेसिस पे ही कंपनी समझ पाएगी कि हाँ डैमेज कैसे हुआ, कितना हुआ, कितनी अमाउंट का हुआ। सो इस सारे प्रोसेस में क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज आती हैं कि वहां का जो लोकल ऑफिस है वहां से भी कोऑर्डिनेट करना। लोकल ऑफिस एज इन साइट ऑफिस की बात हो रही है? साइट ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो साइट ऑफिसेस पे कुछ इनवॉइसेस होंगे, कुछ इनवॉइसेस होंगे जो बल्क में खरीदे गए होंगे तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस में होंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन करने में इनवॉइसेस तो ऑफिस में ही मेंटेन होते हैं, मतलब साइट पे हम अकाउंटिंग नहीं मेंटेन होती। साइट पे ये है कि हाँ कुछ रिसीट्स मिल सकती हैं आपको, बट अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो मे बी हैंडल कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर का, वो तो उसके ऑफिस से ही हो रहा है। तो एक वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ फाइनल इनवॉइसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने 100 सीमेंट के बैग्स का आपने एक ऑर्डर दिया था। फर्स्ट शिपमेंट में 10 बोरियां ही आई हैं वहां पे। तो अगर 10 बैग्स आए हैं तो 10 बैग्स की रिसीविंग भी साइट ऑफिस में ही होगी। अच्छा, बिल उधर होगा, इनवॉइस। तो अगर हमारे पास रिसीविंग नहीं है, हमारे पास बिल्स हैं, हाँ, सो वहां पे फिर वो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हो जाता है कि किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया था उसके थ्रू हमें बीएल निकलवाओ। अच्छा, सो कहीं ना कहीं प्रूफ देना क्लाइंट की जिम्मेदारी है। उसको ये इस्टेब्लिश करना है कि हाँ ये अमाउंट जो मैं बोल रहा हूं, इतनी अमाउंट का रॉ मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ था। सो वो इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। और उसी इस्टेब्लिशमेंट में ही हमारे को ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोले, जीएसटी रिटर्न्स बोली, इनकम टैक्स बोला, परचेज इनवॉइसेस बोले, ये सब हमें चाहिए। वहीं से ही पता चल के आ पाता है कि हाँ एग्जैक्टली एट द टाइम, एट द डेट ऑफ इंसिडेंस कितना स्टॉक पड़ा था। कौन सी कंपनीज ऐसी पॉलिसीज में डील कर रही हैं? काफ़ी कंपनीज इन पॉलिसीज में डील करती हैं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, टाटा एआईजी है, एचडीएफसी है। तो जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो डील करती हैं, हैंडल कर रही हैं, वो इस चीज़ को हैंडल करती हैं। एंड इसके अंदर एक टिपिकल सम इंश्योर्ड जो होता है और सम इंश्योर्ड के अगेंस्ट जो हमारी प्रीमियम बनता है वो क्या होता है? आप एक एग्जांपल्स कुछ दे सकते हैं? सो सम इंश्योर्ड तो सिंपल है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कितने का आपने कॉन्ट्रैक्ट अर्न किया है, वो ही आपका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड होता है। से सपोज वी आर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की वैल्यू जो एज पर एस्टिमेट 5 CR निकली है, 5 करोड़, करेक्ट। तो उसमें हमें 5 करोड़ का वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको एग्जांपल लेते हुए अगर हम डिस्कस करना चाहें। ठीक है। सो पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड जो कॉन्ट्रैक्टर पॉलिसी लेगा, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी, उसका सम इंश्योर्ड होगा 5 करोड़ रुपया। और ये प्रोजेक्ट कितने समय का है, मान लो 2 साल का है या 3 साल का है, तो वो बन जाएगा आपका पॉलिसी का पीरियड। अब उस पॉलिसी के पीरियड के हिसाब से, क्योंकि समय के हिसाब से इसमें रेटिंग्स होती हैं, तो जैसे जैसे आपका पीरियड बढ़ रहा है उसके हिसाब से रेट्स थोड़ा चीपर होते रहते हैं। इसलिए करेक्ट, इसलिए हम कई बार सजेस्ट भी करते हैं, और जनरली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जैसे आप भी देखते होंगे कि अगर मान लो 1 साल का प्रोजेक्ट है, वो समहाउ किसी ना किसी रीजन से वो 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने आगे एक्सटेंड हो ही जाता है। सो हम हमेशा उनको सजेस्ट करके चलते हैं कि आप 6 महीने अपफ्रंट इंक्लूड करके चलें पीरियड को। तो उसके बेसिस पे आ जाता है, प्लस डिपेंड करता है कि आप एडिशनल क्या क्या ले रहे हैं, एज इन द एड-ऑन्स कवरेज में क्या क्या ले रहे हैं। जैसे इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कवर कर सकते हैं आप इसी पॉलिसी में। थर्ड पार्टी लायबिलिटी एज इन? सो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का मतलब रहता है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी मैकेनिक्स आप यूज कर रहे हैं एट द कंस्ट्रक्शन साइट, उससे अगर किसी थर्ड पर्सन को डैमेज हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर कंस्ट्रक्टिंग बंगलो, आप वेल्डिंग कर रहे हैं, राइट? वेल्डिंग में ऑब्वियसली मशीन चाहिए, गैस चाहिए। सो गैस, सपोज फॉर एग्जांपल दैट वो सिलेंडर जो है वो बर्स्ट कर जाता है, आपका वॉल जो है वो साथ वाले नेबरहुड में फॉल कर जाता है और वहां की
मतलब उनको डैमेज हो गया, हमारी साइड की एक्टिविटी से उनको कोई डैमेज हो गया, उनको कुछ भी डैमेज हुआ और उन्होंने अगर आप पे कोर्ट केस फाइल किया, सो दैट कवर्स अंडर द थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी इज एन एड ऑन। करेक्ट। सो वो भी आप कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क में ही कवर कर सकते हैं। सो दैट इज मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा लायबिलिटी मेरी आ सकती है उस पॉलिसी पीरियड में, तो फिर थर्ड पार्टी लायबिलिटी की पॉलिसी आपको सेपरेटली ऑप्ट करना पड़ेगा। तो एक और पॉलिसी बन जाएगी, वो एक और पॉलिसी बन जाएगा। अच्छा, एड ऑन में आप 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते आप। ठीक है। इंडिया में गवर्नमेंट रेगुलेशंस को देखा जाए तो क्या कुछ फर्क है? दैट गवर्नमेंट आल्सो टेल्स यू दैट इफ यू वांट टू वर्क ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स देन यू नीड टू हैव these policies. So गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या ऐसी कोई रेगुलेशंस हैं? करेक्ट। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट या वो टेंडर फाइल लॉन्च करते हैं और जिसको भी अवार्ड होता है, तो उसी में ही कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होता है, जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो अवार्ड होता है, उसी में ही लिखा होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी और अपने एम्प्लॉयज के लिए वर्कमैन कंपनसेशन, ये दोनों पॉलिसीज की पॉलिसी कॉपी उनको सबमिट करनी है, ताकि अगर कोई भी लायबिलिटी ड्यूरिंग दैट कंस्ट्रक्शन आए वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे ना आए, whether that is a government company or let's say you take an example of any hotel construction हो रहा है, वहां पे इंटीरियर डिजाइनिंग हो रही है, right. तो they take the policies from the contractor only and then only they will allow you to enter and do your work. इसमें मुझे एक चीज पूछनी है that say for example in a house only there are three kind of people involved. One is an architect or a designer, the other is a contractor, and third is the person who's hired these people, who's getting his house made. तो क्या जो ओनर ऑफ द लैंड है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो अपने लिए बनवा रहा है ये, डज ही ऑल्सो और शी ऑल्सो नीड्स टू टेक सर्टन पॉलिसीज, इंश्योरेंस, और इज इट बिकॉज अभी तक वी ओनली डिस्कस्ड कि आर्किटेक्ट कैन टेक दिस पॉलिसी एंड इंटीरियर डिजाइनर कैन टेक दिस पॉलिसी, प्रोफेशनल इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्टर कैन टेक वेरियस 3-4 kinds of policies. The owner who's actually started the whole construction process, involved people, does he need to take any policy? So इसका आंसर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा. So first is the ongoing, the construction का जो समय है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है, उस समय में दैट ओनर कैन मेक श्योर कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी आर्किटेक्ट उस पर काम कर रहा है उसके पास ये कवरेजेस हों, ताकि वो लायबिलिटी उस ओनर के ऊपर ना आए. सो ये तो चीज हो गया कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है. एक बार जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, कंप्लीट हो गया, देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर कि उसको वो फायर इंश्योरेंस के अंडर कवर करे. ओके, राइट. सो दैट मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आई शुड से, द ओनर हैज need not take any policy. Yeah, need not take any, but he or she has to make sure that whosoever is the contractor or the architect, they must have taken, be covered. Yeah. Otherwise, the owner will have to bear, or then they'll get into the legal hassles and correct, so on and so because he is the principal. He or she is the principal. The owner is the principal. Right. But once the property is constructed, then I think वो एक different insurance categories में fall हो जाएगा. Correct है. थोड़ा सा fire insurance policies रहती हैं, उसमें आपका फायर का रिस्क कवर रहता है. फायर से, सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, फायर से जैसे एलए में अभी इतना फायर का हुआ, इट वाज इन द न्यूज़, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, व्हिच इज वेरी सैड. इस टाइप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस हुए हैं, तो इस टाइप में हाउ डज इंश्योरेंस कंपनी हेल्प द ओनर्स? या सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली दैट प्रॉपर्टी हैज टू बी इंश्योर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज लायबिलिटी तभी बनता है. हाँ, अब उसमें फायर इंश्योरेंस में ही ये चीज बुश फायर भी कवर होता है. सो अगर ये बुश फायर की वजह से ही चीजें सब हुई हैं, सो दैट ऑल विल बी कवर्ड अंडर द फायर इंश्योरेंस ओनली. वहां पे डिपेंड करेगा कि आपने व्हाट अमाउंट तक का आपने अपनी एसेट को कवर करा रखा है. इज इट अप टू द फुल अमाउंट और इज इट अंडर इंश्योर? फुल अमाउंट एज इन, मतलब अमाउंट से क्या मतलब है हमारा? अमाउंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात अगर कहूं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को पकड़ के चलते हैं. सो फायर इंश्योरेंस में 2-3 पॉइंट्स रहते हैं जहां पे हमें टोटल सम इंश्योर्ड वहां से निचोड़ के आता है. उसमें एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है. अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मतलब है कि आज अगर इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से मुझे बिल्डअप करना है तो आज क्या वैल्यू रहेगा,
अब ये कॉस्ट हर साल डेफिनेटली चेंज होगा। आपका स्टील का प्राइस चेंज हो रहा है, आपका सीमेंट का प्राइस चेंज हो रहा है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है, आपका लेबर महंगा हो रहा है। सो अगर आज कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100 रुपए का है तो अगले साल वो 105 रुपया 107 रुपया जरूर होगा। सो द ओनर हैज टू मेक श्योर कि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सही रिवाइज्ड एज पर मार्केट रखे। सो इफ ही और शी हैज टेकन दैट मार्केट वैल्यू, देन देयर इज नो अंडर इंश्योरेंस at the time of claim. Okay. And हमारे natural disasters जो होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं, जैसे एज आई सेड अर्थक्वेक्स, ये भी एड ऑन का पार्ट है कि ये होते ही है कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी? ये एड ऑन एग्जैक्टली टेक्निकली एड ऑन कवर्स ही होते हैं। अर्थक्वेक है, STFI जैसे मैंने आपको स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड्स एंड इनंडेशन बताया था, ये एड ऑन कवर्स ही होते हैं। अच्छा। बट 99% ये चीजें साथ में ही देके पॉलिसी को दिया जाता है। ओके। और क्लाइंट को भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं रहता क्योंकि काफी सस्ते ये राइडर्स होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा कॉस्ट का भी हम आइडिया लें क्या? एज एन की अगर आज एक 5 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि कितना इन सब इंश्योरेंसेस से मतलब इनका कॉस्ट इफेक्ट भी देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट पे क्या पड़ता है? करेक्ट। सो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं अर्थक्वेक के इंडिविजुअल प्रीमियम के लिए, तो अगर तो हम बात कर रहे हैं घरों के लिए तो 1 लाख रुपए पे 5 रुपए का प्रीमियम आता है। इट इज दैट चीप। अच्छा। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन अदर कैटेगरीज। नाउ यू टेक अ फैक्ट्री, सो फैक्ट्री में अर्थक्वेक 25 रुपए तक चला जाता है। अच्छा। सो वेरी करता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर लैंड। ओके। सो प्रॉपर्टी जो है वो यूज उसका क्या हो रहा है, एज अ गोडाउन है, एज अ ऑफिस है, एज ए रेजिडेंशियल सोसाइटी है, एज एन इंडिविजुअल हाउस है, एज अ हॉस्पिटल है, तो उस पे डिपेंड्स कर जाता है। रेजिडेंसेस पे कम है एंड ऑफिसेज कमर्शियल जोन्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली पूरे इंडिया को। सो दिल्ली, इफ आई टेक एन एग्जांपल, सो दिल्ली कम्स अंडर द जोन 2। सो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहते हैं तो वहां पे वो जोन 2 का रेट लिया जाता है, विच इज 25 रुपीज। ओके। एंड व्हाट अबाउट प्रोफेशनल इंडेमनिटी? उसमें क्या सम इंश्योर्ड के अगेंस्ट क्या प्रीमियम्स रहते हैं? प्रोफेशनल इंडेमनिटी में अगर हम आर्किटेक्ट की ही स्पेसिफिक बात करें, सो वहां पे 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए का अगर हम सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं, सो वहां पे 1 लाख रुपए पे 150 रुपए के आसपास का प्रीमियम रहता है। 100 से 150 रुपए का प्रीमियम रहता है। अब वहां पे 2 चीजें रहती हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूंगा कि जो भी आप सम इंश्योर्ड ले रहे हैं वो रेशियोज में कवरेज होती है कि आप रेशियो 1:1 लेना चाहते हैं, 1:2 लेना चाहते हैं, 1:3 या 1:4। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे साल का एक टोटल सम इंश्योर्ड ले लेते हैं कि मेरे ऊपर लायबिलिटी जो आ सकती है वो फॉर एग्जांपल आ सकती है 50 लाख की। बट अगर मेरे को एक क्लेम की बात हुई तो शायद वो हो सकता है कि वो 25 लाख तक का ही आए। तो और ऐसे इंसिडेंट साल में शायद 2 बार हो सकते हैं मेरे साथ। तो मैं लूंगा 1:2 का रेशियो कि पर इंसिडेंस 25 लाख की लायबिलिटी रहेगी इंश्योरेंस कंपनी की, और ऐसे साल में 2 बार क्लेम्स मेरे आ सकते हैं। तो उससे प्रीमियम में फर्क आ जाता है। करेक्ट। So, जिस भी रेशियो में आप ले रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे जैसे आप 1:2, 1:3 या 1:4, बट ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कि मेरे को 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार जरूरत पड़ेगी? प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली एक रेंज हमें लेके चलना पड़ेगा। हम किस क्लाइंटेल के साथ डील कर रहे हैं और क्या प्रोजेक्ट साइज है हमारे वहां पे, तो एक रफ फिगर हमें बॉलपार्क फिगर एक लेके चलना पड़ेगा। सो जनरली फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूं कि एक विला बन रहा है 5 करोड़ का, सो उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि यू डेफिनेटली आई शुड टेक अ 10% कवरेज अप टू 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। सो 50 लाख का आप रिस्क कवर लेके चलें। एक प्रोफेशनल को लेके चलना चाहिए। करेक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को तो 5 करोड़ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पूरा ही लेके चलना है। बिल्कुल, उनके लिए सिंपल है कि जितने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है प्रिंसिपल के साथ, दैट बिकम्स द पॉलिसी का सम इंश्योर्ड। तो 5 CR पे अगर 50 लाख रुपीस हमारा सम इंश्योर्ड हो जाता है तो इस पे प्रीमियम क्या रहता है? नहीं, 5 लाख सम इंश्योर्ड हो गया पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट पे। 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था जिसपे यू रेकमेंडेड कि 10% जरूर उसका 10% वैल्यू एक प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी में उसको लेके चलना चाहिए एज अ सम इंश्योर्ड। एम आई राइट? 50 लाख लायबिलिटी सम इंश्योर्ड 10% तक लेके उसने, which is 50 lakhs। करेक्ट। तो अब 50 lakhs का सपोज आई टेक लायबिलिटी 50 lakhs लेके मैं चल रहा हूँ, तो मेरा क्या व्हाट विल बी द प्रीमियम?
ओके, मिक्स हो गया ना। प्रोफेशनल इंडेमनिटी में इंडिविजुअल पॉलिसी आ गई, और वो जो 10% वाला था वो कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क में था। अच्छा, दिस इज नॉट इन प्रोफेशनल इंडेमनिटी। नहीं तो प्रोफेशनल्स को क्या लेनी चाहिए? अगेंस्ट प्रोजेक्ट वैल्यू लेना ही नहीं है? नहीं, उनको तो अच्छा, लेना ही नहीं है। वही तो अच्छा। आपने सम इंश्योर पूछा कि वो सम इंश्योर क्या लेंगे। सो वो Okay. मैंने जनरली कहा था कि अगर 5 करोड़ का उनका प्रोजेक्ट है, इट्स बॉल पार्क फिगर, कुछ भी लेना चाहिए, तो एक मैंने सिर्फ रिलेट कर दिया था वो कि वो है। बाकी वो 50 लाख नहीं, आप वो 20 लाख का ही कवरेज लेना चाहते हैं, इट इज अप टू देम ओनली। नहीं, बट अगर अब मैं आपसे कोई बेंचमार्क नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक 5 CR का प्रोजेक्ट है, तो अब 5 CR के प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए? 5 CR। उसका क्या सम इंश्योर्ड बनेगा? 5 उसका क्या प्रीमियम बनेगा? हाँ, उसका प्रीमियम डिपेंड्स अपॉन द टेन्योर, कि वो कितने समय का है। अगर 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा, साल में ही खत्म हो जाएगा, 2 years का है। सो डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो क्या रहा है। और जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, नहीं, 5 करोड़ का घर का रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है सब। घर का है 5 CR प्रीमियम, सर बोलना थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम इट वेरी करता है, फिक्स नहीं है इसमें। ब्रैकेट्स में कुछ बोला जा सकता है? हाँ, 5 CR फॉर 2 साल लेके चले, 2 years, मतलब क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। सो आई डोंट नो, आई कैन से इट रैंडमली। आई थिंक इसको ड्रॉप करना चाहिए। ओके। एंड प्रोफेशनल इंडेमनिटी के लिए? प्रोफेशनल इंडेमनिटी के लिए 150 के अराउंड मैंने जैसे प्रीमियम बोला था कि 1 लाख पे 150 रुपीज के आसपास प्रीमियम आता है। एंड उसका प्रोजेक्ट वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं उसका, क्योंकि वो पॉलिसी जो है वो इंडिविजुअल पॉलिसी है, और वो पूरा 1 साल चलेगी। वो डिपेंड नहीं करती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना चल रहा है या 4 साल चल रहा है। आपकी जो प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है वो आपकी 1 साल हुआ, और उसके बाद आपको रिन्यू करवाना है। तो ड्यूरिंग दैट 1 year व्हाट अमाउंट ऑफ क्लेम कैन अकर, दैट ऑब्वियसली हैज टू बी। जैसे हम मेडिक्लेम के लिए अपना एक रिस्क असेस करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, एग्जैक्टली फॉर प्रोफेशनल इंडेमनिटी के लिए एक हमें अपने आप ही असेसमेंट रखना पड़ेगा कि साल में अगर ऐसा आ सकता है तो कितने का आ सकता है और कितनी बारी आ सकता है। सो वो भी डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से फिर प्रीमियम आ जाता है। गॉट इट। तो ये सारे जो हमारे इंश्योरेंसेस हमने डिस्कस करे हैं, दे ऑल फॉल अंडर जनरल इंश्योरेंस? करेक्ट, ये सारे जनरल इंश्योरेंस में ही आते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इंश्योरेंस में 2 तरीके की रहती हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है कैटेगरी जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस में ही आपकी मेडिक्लेम पॉलिसीज आती हैं, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। मोटर इंश्योरेंसेज आती हैं, चाहे प्राइवेट की हो या कमर्शियल्स हो। पर्सनल एक्सीडेंट आती हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, हमने प्रोफेशनल इंडेमनिटी का बात किया, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क का बात किया, तो ये सारा जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में आता है। राइट। धीरज जी, thank you so much. I think as a professional, after being in the field for 10 years, मुझे खुद इतनी knowledge नहीं थी related to insurance, which is the sad part about our field, because हम लोग design, as I always say, design and creative aspect में इतना involved होते हैं that हम risk management को study ही नहीं कर पाते, and हमें unfortunately तब study करना पड़ता है जब ऐसा कोई incident हमारे साथ होता है। So thank you very much once again for enlightening me and also our viewers on the various policies we can take and safeguard ourselves. Thank you. I hope to see you soon again on the episode. Thank you.